Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher, and today we are going to continue with the lesson number 2.6, Science and Spirituality. So come today, let us start with the part 2 of the lesson. Part 2. In the 1960, when Dr. Kalam joined ISRO, it was just a fledgling organization. His interactions with the great scientist Professor Vikram Sarabhai and the Reverend Peter Bernard Pereira shaped his thoughts on religion. It was here that he learned about the true meaning of religious service. Professor Sarabhai and his team had selected a site in Thumba, Kerala to set up their space research facility. It was an ideal site due to its proximity to the magnetic equator, but there was a major roadblock in getting possession of the site, and it was the fishing grounds of Thumba's fishermen. Moreover, it had an old church of Saint Mary Magdalene, a bishop's house, and a school, which was under the administration of the church. Government officials predicted that it would be impossible to relocate so many people from the site and destroy religious institutions for the sake of a space research center. But upon Dr. Sarabhai's persistence, it was suggested that they approach the only person who could help them in this situation, Father Pereira, the then bishop of the region. 1960 में जब डॉक्टर कलाम ने इसरो ज्वाइन किया तो तब एक डामाडोल पोजीशन वाला एक ऑर्गेनाइजेशन था, और उनके जो इंटरेक्शन थे, वो जो बातचीत होती थी ग्रेट साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्रम साराभाई के साथ, और जो फादर चर्च के जो फादर थे रेवरेंड मतलब रिस्पेक्टेड पीटर बर्नर्ड परेरा से, तो उसकी वजह से उनके रिलीजन के बारे में उन्होंने अपनी एक सोच बनाई। और तब उन्होंने सीखा कि जो ट्रू मीनिंग जो है रिलीजियस सर्विस का, धर्म का जो सर्विस है उसका ट्रू मीनिंग क्या है। प्रोफेसर साराभाई और उनकी जो टीम थी, उन्होंने सिलेक्ट किया एक थुम्बा केरल में एक जगह उन्होंने सिलेक्ट की, और ताकि वो लोग अपना स्पेस रिसर्च फैसिलिटी वहाँ पे सेटअप कर सके। वो एक आइडियल साइट था क्योंकि वो मैग्नेटिक इक्वेटर के बहुत ही पास था। लेकिन मेजर रोड ब्लॉक क्या था कि उस साइट को कैसे हासिल करना, क्योंकि वो था फिशिंग ग्राउंड्स थुम्बा के मछुआरों का। और वहाँ पे एक ओल्ड चर्च था सेंट मैरी मैगडलिन का, जो वहाँ पे एक बिशॉप का घर था और एक स्कूल था जो कि चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये प्रेडिक्ट किया कि ये इम्पॉसिबल है, हम लोग इतने सारे लोगों को साइट के लिए यहाँ से उधर रीलोकेट करें और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को हम लोग डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि हमको स्पेस रिसर्च सेंटर चाहिए। लेकिन डॉक्टर साराभाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया उन लोगों को, परसिस्टेंटली रिक्वेस्ट किया और कहा कि ये जो अप्रोच है ये हम लोगों को कौन करेगा, इस सिचुएशन में हमको कौन हेल्प करेगा, तो वो है फादर परेरा, जो कि उस समय के उस जगह के वो बिशप थे। डॉक्टर साराभाई Dr. Sarabhai and Dr. Kalam approached Father Pereira on a Saturday evening. The Reverend said, "Oh Vikram, you are asking me for my children's abode, for my abode, and for God's abode? How is it possible?" Father Pereira then invited the party to visit the church on a Sunday morning. Dr. Sarabhai, his team, and the forever inquisitive disciple Dr. Kalam took up the offer. At church the next Sunday, the Reverend invited Dr. Sarabhai up to the dais after the prayer service. Turning to everyone present, he said, "Dear children, here is a scientist, Dr. Vikram Sarabhai. What does science do for us? We benefit from the devices that science has developed to light up our homes. I am able to talk to you using this mic thanks to technological advancement. Medical science allows doctors to diagnose and treat patients. Science and technology enhance the overall comfort and quality of human life. And what do I do as a preacher? I pray for you, for your well-being, and for your peace. In short, Vikram and I are doing the same job. Both science and spirituality seek the Almighty's blessings for the prosperity of the human race." देखिए, फिर डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम जो है वो फादर परेरा के पास जाते हैं सैटरडे शाम को, और बोलते हैं, फिर वो फादर परेरा रेवरेंड जो है वो बोलते हैं कि अरे विक्रम, तुम मुझसे मेरे बच्चों का घर मांग रहे हो, मेरा घर मांग रहे हो और भगवान का घर मांग रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। फिर फादर परेरा ने उन लोगों को इनवाइट किया कि तुम संडे मॉर्निंग सुबह चर्च में आना।
तो डॉक्टर साराभाई और उनकी टीम जो थी, और जिसमें फॉरएवर इंक्विजिटिव जो उनके डिसाइपल डॉक्टर कलाम थे, उन्होंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया। फिर अगले दिन संडे को वो चर्च में गए, तो रेवरेंड जो फादर थे उन्होंने डॉक्टर साराभाई को स्टेज पर बुलाया प्रेयर सर्विस होने के बाद, और फिर सब लोगों की तरफ देखकर उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, ये एक साइंटिस्ट है डॉक्टर विक्रम साराभाई, और साइंस हमारे लिए क्या करता है ये तो आपको पता ही है। हम लोगों को जो जो डिवाइसेस साइंस की वजह से बनी हैं उसकी वजह से हम लोगों को कितना फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से हमारे घर में लाइट जलती है, और मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ इस माइक के साथ, ये भी तो साइंस है। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हुआ है। मेडिकल साइंस जो है ये डॉक्टर्स को अलाउ करता है ताकि ये डायग्नोस कर सके और पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों के जीवन को ओवरऑल कंफर्टेबल बनाता है और हमारे ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और मैं एज अ प्रीचर क्या करता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ, आप लोगों के वेलबींग के लिए प्रेयर करता हूँ, आप लोगों की शांति के लिए मैं प्रे करता हूँ। तो इन शॉर्ट विक्रम और मैं, हम दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। दोनों साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, भगवान के आशीर्वाद से इंसानों का भला ही चाहते हैं। Human mind and body. Dear children, Dr. Vikram says that within a year he wants to build scientific facilities near the sea coast, replacing all the settlements that now stand there. Now, can you give up your abode? Can I give up my abode? Can we give up God's abode for such a great scientific mission? Dr. Kalam recalled how he witnessed a pin drop silence for a long moment. Then everyone got up and the whole church reverberated with the deafening noise of a collective Amen. And so work and the research center was soon underway, but not without alternate accommodation being offered to the affected fishermen, the church and the Reverend Pereira. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, डॉक्टर विक्रम कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर वह ऐसे साइंटिफिक तरीके बनाएंगे हमारे समुंदर के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं वो जगह अपन को पूरी खाली करनी पड़ेगी। तो क्या आप अपना घर दे सकेंगे? क्या मैं मेरा घर दे सकूँगा? और क्या स्वयं भगवान खुद अपना घर दे सकेंगे इस साइंटिफिक मिशन के लिए? तो डॉक्टर कलाम को याद आया कि कैसे उन्होंने 1 सेकेंड के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। फिर हर एक जन खड़ा हुआ और पूरा चर्च जो था वो फिर आमीन के कलेक्टिव आवाज़ में, मतलब कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, आमीन करके सब लोग चिल्लाए, तो वो रिवर्बरेट हुआ, गूंजा। और फिर ये जो रिसर्च सेंटर था उसका काम जो था वो अब शुरू हुआ, और वहाँ पे अल्टरनेट अकोमोडेशन दिया गया अफेक्टेड फिशरमैन को, चर्च को और रेवरेंड परेरा को। देन पार्ट 3 ऑफ द लेसन वी विल डू टुमारो।